عزیزو، خدا کی بڑائی کا مطلب ہے اس کی تمجید کرنا، اس کی تعریف کرنا۔ جب خداوند کسی کی زندگی میں کوئی کام کرتا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ خدا کی تمجید کرتا ہے، وہ اس کی بڑائی کرتا ہے کہ خدا نے میری زندگی میں یہ بڑا کام کیا ہے۔ تو اگر ہم اوپر والی آیتیں دیکھیں تو یہ الیشبا جو ہے وہ خداوند سے کہہ رہی ہے، الیشبا خداوند سے کہہ رہی ہے جو زکریا کی بیوی ہے۔ الیشبا جو وہ بانجھ تھی اور اس کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی، اور وہ عمر رسیدہ بھی تھی، اس کا شوہر بھی عمر رسیدہ تھا، لیکن اس کا شوہر اور الیشبا جو ہے وہ مذبح کی خدمت کرتے تھے، خدا کے گھر کی خدمت کرتے تھے۔ اور جب خداوند کی نظر زکریا اور الیشبا پر پڑی تو خدا کے فرشتے نے اسے پیغام سنایا کہ ایسے ایسے ہوگا اور اب تیرے بیوی کے بیٹا ہوگا۔ جب کوئی بھی شخص ایمان رکھتا ہے اور وہ خدا کی راہ سے بھٹکتا نہیں ہے، آج ہم دیکھتے ہیں بہت ساری ایسی بہنیں ہیں، وہ دعا تو کرتی ہیں لیکن وہ چند سال ویٹ کر لیا، چند مہینے انتظار کر لیا، اگر خداوند نے بلیس نہیں کیا، انہیں بلیسنگ نہیں دی تو وہ اور جگہوں پہ جانا شروع کر دیتی ہیں۔ اکثر کار لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، اولاد پان واسطے بڑا کچھ کرنا پہنتا ہے، قبر تے جا کے تو نہ لیں گی تو کی ہو جائے گا، تینوں رب پتر دے دے گا، ایسے کر لے گی تو کیا ہو جائے گا، تجھے ایسی اولاد مل جائے گی۔ تو آپ اس بات کو یاد رکھیں، کبھی بھی یہ جو سیانے ہیں یا جادوگر ہیں یہ آپ کو بیٹے نہیں دے سکتے ہیں، یہ آپ کو زندگی والی اولاد نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی اولاد زندگی والی دے سکتا ہے تو وہ رب الفاج ہے، وہ رب الفاج ہے۔ اولاد ہونے والی تو ہو جاتی ہے لیکن آتے ہی جہاں فانی سے رخصت بھی ہو جاتی ہے۔ ایسے ایسے میں نے کام دیکھے ہیں جو لوگ غیر ممدوں کے پاس جاتے ہیں کہ میرے ہاں اولاد ہو، میرے ہاں بیٹا ہو، تو خدا نہ تو انہیں پھر بیٹیاں دیتا ہے نہ انہیں بیٹے دیتا ہے، خدا ان کی امیدوں کو راستے میں ہی توڑ دیتا ہے۔ لیکن جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا سب کچھ کرے گا، اور یہ زکریا اور الیشبا ایسے وفادار روحانی لوگ تھے کہ یہ خدا کے ساتھ جڑے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ الیشبا اور زکریا سب سے جب ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی وہ تب بھی روحانی تھے۔ جب کوئی لڑکی یا لڑکا شادی سے پہلے ہی خدا پرست ہوتے ہیں تو وہ شادی کے بعد بھی رہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر نوجوان بیٹا یا نوجوان بیٹی شادی سے پہلے خدا میں ہے تو وہ شادی کے بعد بھی خدا میں رہتے ہیں اور خداوند سے ہی مانگتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی جادوگرنی مل جاتی ہے یا جادوگر لڑکا مل جاتا ہے تو ان دونوں میں ٹکرار بہت بڑا رہتا ہے۔ اگر وہ لڑکا راست باز ہے اور اس کی بیوی ناراست ہے تو خدا انہیں برکت نہیں دیتا ہے، کیونکہ برکت متفق ہونے سے ملتی ہے۔ جب دو لوگ ایک بات پر متفق ہوتے ہیں تو خدا پھر ان کی زندگی میں کام کرتا ہے، ادروائز خدا کام نہیں کرتا ہے۔ اور یہ لوگ جو اب عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اور خدا نے فرشتے کو بھیجا، دیکھیں خدا پہلے بھی ان کو دے سکتا تھا، خدا ان کی جوانی کے ایام میں بھی ان کو اولاد دے سکتا تھا، لیکن خدا نے ان کے لیے، کیوں یہ خدا کی نظر میں ہے اور ان کی وفاداری خدا نے دیکھی، ان کی وفاداری دیکھی کہ یہ میرے مذبح کی خدمت کرتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اور اس وجہ سے خدا ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ہم سمجھتے ہیں شاید خدا ہمیں دیکھ نہیں رہا، شاید خدا ہماری سنتا نہیں ہے، ہم نے بڑی دعائیں کی ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے خدا کی نظر میں ہے۔ جو کچھ اس روح زمین پر انسان کرتا ہے، اچھا یا برا،
खुदा उसे देखता है। खुदा को पता है कि मेरी बेटियां या मेरे बेटे क्या कर रहे हैं। हम इंसान से छुपा सकते हैं लेकिन खुदा से नहीं छुपा सकते हैं। और याद रखें, कभी भी गैर ममूद जो है वो आपको बेटे और बेटियां नहीं दे सकते हैं जब तक रब्बुल फाज ना चाहे। ना कोई आपको मौत दे सकता है जब तक खुदा की मर्जी नहीं है। जितना इंसान का वक्त मुकर्रर है उससे पहले कोई उसे मार नहीं सकता। अगर खुदा की मर्जी है तो वो शख्स जो है वो मर सकता है, उसका हादसात में भी वो मौत आ सकती है, उसका कत्ल भी हो सकता है, क्योंकि खुदा ने जो जो वक्त जिस जिंदगी में लिखा होता है उसी वक्त वो इंसान जो है इस जहां फानी से रुखसत होता है। और जिस बरकत का वक्त खुदा ने मुकर्रर किया होता है उस वक्त से पहले कभी बरकत नहीं मिलती। वक्त के पहले जो खुदा ने वक्त रख दिया है उसी वक्त पर खुदा अपने बच्चों को ब्लेस करता है, उसी वक्त पर वो उन्हें बरकत देता है। और रिश्वा कहती है कि मेरी जान खुदावन की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी से खुश हुई। क्यों खुश हुई? इसलिए कि उसने दुनिया में से उसकी रसवाई को दूर कर दिया, उसका बांझपन दूर कर दिया, उसका तवक्कुल खुदा पर था। इस वजह से खुदा ने उसकी जिंदगी में बड़ा मौसम किया, खुदा ने उसकी जिंदगी में काम किया। जब हमारा तवक्कुल, हमारा ईमान खुदा पर होता है तो खुदा देखता है हमें कहां तक इस लड़की का या इस लड़के का या इस बुजुर्ग का या जिस भी उम्र में है उसका ईमान है। खुदा हमारे ईमान के इवज ही काम करता है, अदरवाइज नहीं करता। हम 4 दिन चर्च आ गए, हाँ जी खुदा ने मुझे अभी बरकत नहीं दी, खुदा ने मुझे अभी ये नहीं किया। याद रखें, आपके सामने खुदा यीशु मसीह भी खड़ा हो जाएगा ना तो आपको बरकत नहीं मिलेगी। वजह यह है तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। ईमान जुबान से, दिल से फिर खुदा काम करता है। और खुदावन यीशु मसीह जिसके पास गया, खुदावन यीशु मसीह ने उससे एक ही तकाजा किया, क्या तेरा ईमान है कि मैं तुझे ये बरकत दे सकता हूँ? तेरा ईमान है कि तेरी आंखें आ जाएगी? तेरा ईमान है कि तेरा कोढ़ चला जाएगा? खुदावन यीशु मसीह ने अपने ईमान का इजहार नहीं किया, बल्कि जिसके पास भी खुदावन यीशु मसीह गया है उसी के ईमान पर बात की है कि तेरा ईमान है कि तू मैं ये कर सकता हूं। उसने कहा कि हाँ। आज जब हमारा ईमान होता है, उम्र चाहे जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन अगर हमारा ईमान खुदा पर है तो खुदा फिर बेटे नहीं नबी देता है, खुदा फिर बेटे नहीं नबी देता है। और आजकल ये ट्रेंड बन गया है, 30 साल हो गए हैं शादी नहीं, अब इसकी औलाद नहीं होगी। 35 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए हैं, अब इसकी औलाद नहीं होगी। आप खुदा के साथ बात करके आए हैं कि इसकी औलाद नहीं होगी, खुदा ने आप पर इल्हाम उतारा है कि इसकी औलाद नहीं होगी। बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदा ने उन लोगों को फर्जंदे नरीना दिए हैं, बल्कि उनको नबी दिए हैं जो उम्र रसीदा है। सारा की उम्र कितनी थी? 90 साल। खुदा ने उसे नबी नहीं दिया, बेटा दिया कि नहीं दिया? खुदा अपने लोगों की शर्मिंदगी इस दुनिया से दूर करता है, लेकिन खुदा चाहता है कि पहले मेरी बेटी या मेरा बेटा कामल हो जाए, वो इस तौर पर हो जाए कि कभी वो शर्मिंदे ना हो, कोई ये ना कहे, वो ना कहे कि तेरा बेटा ऐसा है, तेरा बेटा ऐसा है, तेरी बेटी ऐसी है। खुदा तब इंसान को औलाद देता है जब उसके लायक हो जाता है कि ये अपने बच्चों की उस राह पर करेंगे, तरबियत किस राह पर, जो राह खुदा ने हमें दी है। और वो राह आसमान की बादशाही है, वो राह यीशु मसीह है। जब हम अपने बच्चों की तरबियत ही नहीं कर सकते तो क्या खुदा हमें अच्छी अच्छी नेमत देगा? कोई नबी देगा खुदा हमें? खुदा हमें कोई नबिया देगा? नहीं देगा। जब तक
हम उस लायक नहीं होते हैं, तब तक खुदा हमें ऐसी बरकतें नहीं देता है। हन्ना भी उम्र रसीदा हो गई थी और हन्ना ने फिर एक दिन गिरियाजार होकर खुदा के हजूर में दुआ की। अगर उसे पेशतर उसकी जिंदगी की तरफ देखा जाए तो हन्ना एक रासबाज औरत थी। हन्ना एक बहुत ज्यादा अच्छी औरत जिसे कहा जा सकता है वैसी थी कि उसने अपनी सोच को भी बर्दाश्त किया और उनकी भी वो खिदमत करती थी और खुदावन की भी खिदमत करती थी। और जब भी साल ब साल अच्छी से अच्छी उम्दा से उम्दा कुर्बानियां वो खुदावन के घर में लेके आती थी। तो वो रासबाज कितनी ज्यादा थी, लेकिन उसके यहाँ औलाद नहीं थी। लेकिन जब उसकी उम्र काफी ज्यादा हो गई तो उसे उसकी सोच सताने लगी। तो उसने फिर उसको कुछ जवाब नहीं दिया कि वो आगे से लड़ना शुरू हो गई, उसने उसे बातें सुनानी शुरू कर दी। नहीं, उसने सिर्फ और सिर्फ खुदा के घर में जाकर दुआ की, गिरियाजार हो गई। किसी काहिन को भी नहीं उससे कहा कि काहिन यहाँ पे मौजूद है, वो मेरे लिए दुआ करे, मेरे लिए शफायत करे। उसने खुद रो रो कर दुआ की। उसकी आवाज भी नहीं निकल रही, लेकिन खुदा उसके इतने करीब था कि उसके दिल की आवाज खुदा तक पहुंच रही थी। उसके दिल की आवाज खुदा तक पहुंच रही थी। काहिन पास बैठा है, उससे नहीं पता चल रहा कि ये क्या बोल रही है और ये क्यों रोई जा रही है। वो समझ रहा था शायद आज हन्ना ने कोई नशा कर दिया है, इस वजह से ऐसी हरकतें कर रही है। उसने कहा कि मैंने कोई नशा नहीं किया है। उसने कोई नशा नहीं किया, वो खुदावन के साथ बातें कर रही थी और खुदा ने उसकी बातों को सुन लिया। जब खुदा ने उसकी बातों को सुन लिया तो खुदा ने उसे बेटा दिया कि नबी दिया? सैमुअल नबी खुदावन ने उसे अता किया। आज लोग बेटों के लिए सियानों के पास जा रहे हैं, जादूगरों के पास जा रहे हैं और मेरे पास ऐसे बहुत ज्यादा बातें भी हैं, कलीसिया में से भी हैं और मुझे बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे बात हुई है, ऐसे ऐसे हुई है, ऐसे लोग जादू तवीज जाके लाके तवीज पी रहे हैं कि हमें औलाद हो जाए, हमें खुदा क्या करे, बेटा दे दे, हमें बेटा दे दे, हमें बेटा दे दे। और वो बेटा अगर इब्लीस ने आपको दे दिया तो जैसा वो शैतान है वो बेटा भी आपका शैतान ही निकलेगा। जो लोग जादूगरों से जाके औलादों को हासिल करते हैं वो शैतान की है, वो खुदा की नहीं होती है। इसलिए खुदा पर ईमान रखें। उम्र यहाँ पर ही है, अगर खुदा ने आपकी किस्मत में औलाद का सुख रखा है तो वो आपको देगा ही देगा। बाबे आपको सुख नहीं दे सकते हैं, बाबे आपकी रुसवाई दूर नहीं कर सकते हैं। अगर अचानक ऐसा हो भी गया तो आपने खुदा से नहीं शैतान से मांगा है, तो आपका बेटी हो या बेटा वो शैतान ही निकलेगा। और मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया कि हमने बाबों के जरिए से औलाद ली, उसके बकरे दिए, तो उन लोगों ने शैतान ही वो बने हैं। उनकी जिंदगी में आज भी शैतान है और उनके काम बताते हैं कि वो इब्लीस के फरजाद हैं। जो सियानों से बाबों से जाकर बकरे देकर छकरे देकर औलाद लेता है, उसकी औलाद वैसी ही होती है जैसे इब्लीस के फरजाद। ये एक हकीकी बात है। लेकिन जिसका तवक्कल खुदा पर होता है, इब्राहिम से खुदा ने वादा किया, 25 साल वो इंतजार करता रहा। 25 साल सारा ने वेट किया, इंतजार किया और खुदा ने फिर उन्हें इसहाक दिया, वादे का फरजंद, और वो नबी बना। वो नबी था। खुदा ने उसकी नस्ल को बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते आसमान के सितारे और रेत की जरों की मानिंद कर दिया। देखिए, जल्दी 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 वाले काम जो होते हैं वो इब्लीस के होते हैं, वो शैतान के होते हैं। लेकिन खुदा इंसान की जिंदगी में आहिस्ता जरूर काम करता है लेकिन कामिल करता है। स्पीड वाला नहीं खुदा को पसंद,
फटाफट, ये नहीं खुदा करता। खुदा जब भी इंसान की जिंदगी में काम करता है बड़े मुतमिन होकर सुकून के साथ, जैसे जिक्रिया और अलिशवा खुदा के मज़बा पर खिदमत करते रहे और खुदावन ने उन पर जब अपनी मुकद्दस निगाह की तो वो ढेर उम्र के थे और खुदावन ने उनकी रसवाई लोगों में से दूर कर दी। लोगों में से दूर की तो खुदावन ने उन्हें बेटा दिया, वो खुदा की राह को तैयार करेगा। उसका नाम यूहन्ना रखना, उसका नाम यूहन्ना होगा। वो खुदा की आगे खुदा की रास्तों को तैयार करेगा। यूहन्ना अस्तकबासी हम जिसे कहते हैं, जो बपतिस्मा देता था और खुदा की राह की तालीम लोगों को देता था। वो जिक्रिया और अलिशवा का बेटा था। खुदावन ने उन्हें दिया। जो चीज हम खुदा से लेते हैं वो आम चीज नहीं होती है। दुआ में इतनी ज्यादा ताकत है, जब हम दुआ करते हैं, खुदा की खिदमत करते हैं, तो लोग इस बात को जान ले कि खुदा की जो खिदमत करता है वो शख्स ही अफजल है। जो खुदा की खिदमत करता है वो शख्स अफजल है। उसकी उम्र चाहे 50 साल भी हो गई ना, खुदा ने उन्हें ब्लेस करना ही करना है। खुदा ने बरकत देनी ही देनी है। जो वादा खुदा कर देता है वो वादे से मुकरता नहीं है, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं है कि झूठ बोले। खुदा इंसान नहीं है कि झूठ बोले। खुदा ने जो कह दिया सो वो करने में कादिर मुतलक है। तो अजीजों, ईमान खुदावन पर रखें। गैर ममूदों के पीछे दौड़ने वाले का गम बढ़ जाएगा। और खुदावन खुदा कहता है कि मैं इन जैसे तपावन नहीं तपाऊंगा। जैसे ये लोग तुम्हें सताते हैं, मेरे लिए बकरे ले आओ, मेरे लिए इतना रुपया पैसा लाओ, सोना चांदी लेके आओ, मैं ऐसे तपावन नहीं तपाऊंगा। खुदा अगर कुछ मांगता है तो वो इंसान का दिल मांगता है। खुदा इंसान का दिल मांगता है और वो कहता है कि रूह से और सच्चाई से मेरे पास आ। खुदा के पास जब हम आते हैं तो खुदा का आसमान, जो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि वो एक अच्छा खजाना है। खुदा का आसमान अच्छा खजाना है और वहां पर बहुत ज्यादा बरकतें ही बरकतें हैं। और वो जिससे चाहता है अपनी मुट्ठियों को खोल कर बरकतों से भर देता है। जब वो इंसान की आजिज़ी को देखता है, इनकसारी को देखता है, तो वो बरकतों पर बरकतें देने की कुदरत रखता है। अब मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे जो है वो छोटे छोटे होते हैं या पैदा होते ही डेथ हो जाती है। उनकी डेथ क्यों होती है, वो जुदा क्यों किए जाते हैं? उनके माँ बाप की सबब से। जब इंसान की जिंदगी में गुनाह होता है तो बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? तेरे माँ बाप की सजा किसको मिलनी है? तेरी पुश्तों को। जो माँ बाप ने, एक पुश्त ने गुनाह किया है, उसकी 7 पुश्तें इस रूहे जमीन पर उस सजा को पाएंगी। माँ बाप के गुनाहों की सजा उसकी औलाद को मिलती है। जो इस्माइल कहती कि मुझे रोया में खुदा आसमान पर ले गया, उसकी किताब का नाम है आसमान एक हकीकत है। तो वो कहती कि मैंने वहां पे देखा बहुत ज्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं, आसमान पर हैं। तो मैंने कहा खुदावन, तूने इन छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे तो क्यों लेके आया है, वजह क्या है? खुदा ने कहा जब तक इनके माँ बाप सच्चे दिल से तौबा नहीं करेंगे तब तक मैं इनको वापस नहीं दूंगा। उसने अपनी बुक में ये बात लिखी कि यीशु मसीह ने कहा कि इनके माँ बाप के गुनाहों के सबब से मैं इन्हें ले गया हूं, और जब तक इनके माँ बाप सच्ची तौबा नहीं करेंगे मैं इन्हें वापस नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या है? जब इंसान की जिंदगी में गुनाह है और वो गुनाह पर गुनाह से औलाद को हासिल करता है, तो खुदा किसी वक्त भी उसे खत्म कर सकता है। खुदा उसे किसी वक्त भी इस जमीन में वापस भेज सकता है, क्योंकि वो खुदा है। लेकिन जो खुदा पर तवक्कल करते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं,
खुदा उन्हें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता है। रास्तबाज को खुदा ने कहा है कि रास्तबाज की औलाद जो है वो जमीन पर जोरावर होगी। जो शख्स रास्तबाज है उसकी औलाद के लिए बरकतें ही बरकतें हैं। और आज से आप इस बात को गौर करें, अगर आप में से किसी ने भी जादू तवीज़ों से अपने बच्चों को हासिल किया है या आप उस राहों पे चलते रहे हैं, तो आज भी वक्त है कि खुदा माफ करता है, खुदा माफ कर देता है। खुदा हमारे किरमची गुनाहों को भी धो देता है। जब माँ बाप सच्चे दिल से खुदा से माफी को तलब करेंगे तो खुदा उन्हें माफ कर देगा, उनके बच्चों की उम्र को दराज करेगा, उनकी उम्र को दराज करेगा ताकि वो अपने बच्चों के बच्चे देखें। रास्तबाज की उम्र जमीन पर दराज होगी, रास्तबाज अपने बच्चों के बच्चे देखेगा। लेकिन अगर आपकी पुश्त में या आपके माँ बाप में या आप में ऐसी कोई जादूगरी पाई गई है कि जिन्होंने जादू की वजह से औलाद को हासिल किया है, तो ये खतरनाक बात है, ये खतरनाक बात है। खुदा इस बात को पसंद नहीं करता है। आपके लिए यही है कि खुदावन से माफी को तलब करे और उस बच्चे के लिए खुदा से उम्र की दराजी को मांग ले। जब आप सच्ची तौबा करते हैं लोग और खुदावन से माफी को मांग लेते हैं तो खुदा माफ भी कर देता है। ऐसा नहीं कि खुदा माफी नहीं करता, लेकिन लोग अपने आप को गुनाहगार समझते नहीं है। किसी से भी बात कर लो, कहते हैं जी मेरे वगैरह रास्तबाज से कोई नहीं। अपनी जवानी में या अपने घरों में जब वो खुदा में नहीं थे तो कौन कौन से गुनाह उन्होंने किए, ये खुदा का और उनका मामला है। लेकिन अगर अभी तक भी इतनी रोशनी में भी उन्होंने यही सर्कट चलाया हुआ है तो समझ ले कि इब्लीस जो है वो आपके दरवाजे पे दबका बैठा है और जब खुदा की बाढ़ हटेगी तो वो किसी को छोड़ेगा नहीं, वो फाड़ डालेगा, वो फाड़ डालेगा। आज हमें जरूरत है हम खुदावन की नाम को इज्जत और जलाल दे, सच्चाई के साथ खुदावन की तमजीद करें। अगर आपके घरानों में या आपके बच्चों में कोई मसला है तो समझ लें कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसे गुनाह है जिसकी वजह से आपकी दुआ आपके बच्चे पे असर नहीं कर रही, आपकी दुआ से आपके बच्चे सरफराज नहीं हो रहे हैं। अपनी जिंदगी से इन जादूगरियों की माफी मांगे, खुदावन से माफी को तलब करे, क्योंकि वो माफ करने में कादिर मुतलक है, खुदावन माफ कर देता है। लेकिन अगर कोई हलाकत हो गई तो फिर रोने के अलावा और इंसान के पास कुछ भी नहीं बचता है। रोना है तो सिर्फ रोना है और वो लोग खुदा से भी दूर हो जाते हैं। एक बात याद रखिएगा कि खुदा कादिर मुतलक है, कोई इंसान खुदा को ठग नहीं सकता है। जैसे बहन सहमा कह रही थी कि लोग मौजे लेते हैं, लोग बरकतें पाते, शिफाई पाते हैं, लेकिन उनके जो खादमीन उन्होंने लहदा रखे होते हैं वो लहदा है, तो ऐसे लोगों को भी बरकत नहीं मिलती, ऐसे लोगों को भी बरकत नहीं मिलती। क्योंकि कलाम मुकद्दस के फैसले हैं कि जिस जगह से तुझे नेमत और बरकत मिली है उस जगह पे जुड़ा रहे ताकि तेरा भला हो। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भला हो और खुदावन की बढ़ाई करे, खुदावन की तमजीद करे, उसे मुनज्जी और खुदा कह के पुकारे, उसे अपना शख्सी नजात हिंदा कबूल करे, तो आज हमें अपनी जिंदगी पे गौर करने की जरूरत है। जो ऑनलाइन लोग देख रहे हैं वो भी इस बात को सुन लें। अगर आपको आज तक खुदावन ने औलाद नहीं दी है, अगर आज तक आप बांझपन में हैं, तो खुदा पर तवक्कल करना शुरू कर दें। आज इसी के साथ खुदा की खिदमत करें, खुदा के घर में जाएं, उससे दुआ करें ताकि खुदा आपकी रुसवाई जो है वो लोगों में से दूर करेगा। खुदा आपको औलाद देकर बच्चों वाली बनाएगा। खुदा सब कुछ करने में कादिर मुतलक है और खुदा कभी भी ऐसा सख्त खुदा नहीं है कि जो लोग उसके पास आए और वो सच्चे दिल से माफी मांगे और खुदा उन पर रहम ना करे। खुदा उन पर रहम करता है और जरूर ही करता है, क्योंकि उसने कहा कि मैंने तेरी रुसवाई जो है वो तेरे लोगों में से दूर कर दी है। खुदा रुसवाइयों को दूर करता है,
خدا ایسی لعنتوں کو دور کرتا ہے جو باوجات سے چلی آ رہی ہیں۔ تو اگر کسی شخص کی زندگی میں یہ چیزیں ہیں تو اسے اپنی زندگی پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آیا خدا پر ایمان رکھیں گے تو خدا سے بڑی بڑی برکتوں کو حاصل کریں گے۔ خدا آپ کو بیٹے نہیں پھر نبی دے گا جب آپ خدا پر ایمان رکھیں گے۔ جب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، میں آپ کو اپنی گواہی ایک دینا چاہتی ہوں، جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میرا رشتہ ہوا تھا، تو میں نے خداوند سے ایک دعا کی اور وہ مسلسل تھی۔ میں نے کہا خداوند مجھے اولاد جیسی نعمت ضرور دینا۔ میں نے یہ نہیں کہا خداوند تو مجھے پتر ہی دے، نہیں، خداوند مجھے اولاد جیسی نعمت ضرور دینا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی بہنیں تھیں جن کے شوہر ان پہ تشدد کرتے تھے، ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی اور انہیں مارتے پیٹتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے تجھے طلاق دے دینی، ہم نے دوسری بیوی کر لینی، اور ایک خوف تھا میرے اندر۔ میں نے کہا نہیں خداوند تو یہ ضرور کرنا۔ میں نے خداوند سے یہی دعا رکھی تو خدا نے مجھے کیا دیے؟ پاسٹر رحیل کو جہاں جہاں اس کی ہے، ہر ملک میں خدا اسے لوگ اسے جو ہے خدا کے خادم اسے نبی کہتے ہیں۔ لوگ اسے نبی کہتے ہیں کیونکہ جو خدا سے دل لگا لیتا ہے اور خدا پر توکل کرتا ہے، خدا سے مانگتا ہے، تو خدا اسے بیٹے نہیں پھر نبی دیتا ہے۔ خدا اسے بیٹے نہیں نبی دیتا ہے۔ تو آج کے کلام کا لبلبہ یہ ہے کہ آپ نے خدا سے مانگنا ہے۔ اگر آج تک آپ کے گھر میں اولاد نہیں ہے، خدا نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں، بیٹا نہیں ہے، خدا پر توکل کریں۔ خدا نے جیسے الشبا کی، حنا کی رسوائی دور کی تو آپ کی نہیں کر سکتا؟ کر سکتا کہ نہیں؟ سارا کی رسوائی اس نے دور کر دی۔ وہ کتنی بجت تھی، کتنی مایوس ہو چکی تھی، لیکن خداوند نے 90 سال کی عمر میں اس کی رسوائی بھی دور کی اور اسے نبی دیا، اور آسمان کے ستارے اور ریت کے زروں کی مانند اس کی اولاد کو بڑھایا۔ تو کیا وہی خدا ہمارا خدا نہیں ہے؟ خدا وہی ہے، خدا کے حکم بھی وہی ہیں جو اس نے ابراہیم کو دیے، اسحاق کو دیے، یعقوب کو دیے، وہی حکم آج بھی چل کر ہمارے پاس آئے ہیں۔ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو خدا ہمیں ہر طرح سے نوازے گا اور ہر دنیا کی نعمت اور برکت وہ آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ ویسا کرنے میں قادر مطلق ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، اگر کسی کے ساتھ آپ کی واقفیت ہے اور وہ بہن بانچ ہے اور وہ غیر ممودوں کے پاس جاتی ہے تو اسے خدا کا کلام سنائیں کہ ہمارے خدا میں ایسی طاقت اور ایسی قدرت ہے کہ وہ آپ کی رسوائی کو دور کر سکتا ہے۔ وہ ان لوگوں کی طرح تپاون نہیں تپائے گا۔ بکرے لے آؤ، سونا لے آؤ، چاندی لے آؤ، یہ کرو وہ کرو، ایسی ڈیمانڈیں ہمارا خدا نہیں کرتا ہے۔ وہ صرف اور صرف چاہتا ہے کہ سچے دل کے ساتھ میرے پاس آ تاکہ میں تجھے برکت دوں۔ خدا ایسے لوگوں کو بلاتا ہے جو روح سے اور سچائی سے اسے قبول کریں گے، اور خدا آسمان کے دریچوں کو کھول کر اتنی برکت کا می برسائے گا انہیں رکھنے کو جگہ کم ہوگی۔ اور ابلیس کے فرزند اور خدا کے فرزند جو ہے آپ کو لیدہ لیدہ نظر آئیں گے۔ ابلیس کے فرزندوں کی خاصیت نشہ انہوں نے کرنا ہے، برے کاموں پہ بری روشوں میں انہوں نے چلنا ہے، زناکاریاں انہوں نے کرنی ہیں۔ یہ ابلیس کے فرزندوں کی نشانیاں ہیں۔ ہر طرح کے غلط کام جو ہے وہ کرتے ہیں جو ابلیس کے فرزند ہیں، لیکن جو خدا کے فرزند ہیں ان کے منہ سے بددعا نہیں نکلتی ہے، برکت ہی برکت نکلتی ہے۔ وہ برکت دینے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ جو خدا سے ہیں ان میں اور ابلیس کے لوگوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ خدا کے لوگ ستاروں کی مانند ہیں،
اور ابلیس کے لوگ جو ہے وہ خاک کی مانند ہے، وہ خاک میں ہی بہت جلد مل جائیں گے جنہوں نے ابلیس پر توکل کیا ہوا ہے اور ابھی تک اتنی روشنی میں بھی وہ جادو تویزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دوسروں کو دکھ دے رہے ہیں اپنا سکھ پانے کے لیے، تو وہ لوگ سن لے کہ وہ کبھی بھی سکھ کو حاصل نہیں کریں گے۔ یہ سال ان کی بربادی کا سال ہے، یہ سال ان کا آخری سال ہے۔ اس بات کو وہ جادوگر یاد کر لے، وہ جادوگرنیاں یاد کر لے جو لوگوں کو دکھ پہنچا رہی ہیں، لوگوں کے رحموں کو وہ جادوؤں سے بند کرتے ہیں، تو وہ اس بات کو یاد رکھے کہ یہ سال ان کا بھی آخری سال ہے، کیونکہ اب خدا کے لوگ اٹھیں گے اور سرفراز ہوں گے۔ ہالیلویا! اب خدا کے لوگ اٹھیں گے، آگے کے لفظ آپ نے کہنا ہے، اب خدا کے لوگ اٹھیں گے اور سرفراز ہوں گے۔ یہ راست بازوں کی سرفرازی کا سال ہے اور خدا انہیں برکت دے گا۔ اور میری بہنوں اس بات کو یاد رکھیے گا، جو آن لائن بھی سن رہی ہیں وہ بھی اس بات کو یاد رکھیں، اگر آج تک خداوند نے آپ کو برکت نہیں دی ہے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ سال آپ کی برکت کا سال ہے۔ آپ راست باز ہیں اور خداوند راست باز کو ضرور فرزند نرینہ عطا کرے گا، وہ وعدوں کا سچا خداوند ہے۔ اور جو بہنیں مایوس ہو چکی ہیں وہ آج سے دلیری پکڑ لے کہ خداوند ان کے ساتھ ہے اور خدا زندگی والی خوبصورت اولاد انہیں عطا کرے گا، خدا دے گا ان کو، کیونکہ لوگوں نے انہیں جتنا پریشان کرنا تھا کر لیا۔ اب خداوند اس سال میں انہیں سرفراز کرے گا اور خداوند ہی انہیں بیٹوں جیسی نعمتیں دے گا، جنہیں بیٹیاں چاہیے انہیں بیٹیاں بھی خداوند دے گا اور جنہیں بیٹے چاہیے خدا انہیں بیٹے بھی دے گا۔ جو اولاد خداوند کی طرف سے ہوتی ہے وہ مقدس ہوتی ہے، راست باز کی اولاد مقدس ہے اور وہ زمین پر زورآور ہے۔ خداوند نے نبی بھی دے گا اور خداوند نبیہ بھی دے گا۔ دبورہ نبیہ تھی، خدا کی بیٹی، وہ انصاف بھی کرتی تھی، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے، لیکن خداوند نے آپ کی دعا کو سنے گا۔ جب آپ روح سے اور سچائی سے خداوند سے مانگیں گے تو خدا آپ کو دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو آج کے بعد اپنے لفظوں پہ غور کریں اور سچے دل سے خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہو کے چلے، اس سے دعا کریں تاکہ خداوند آپ کی رسوائیوں کو دور کرے اور آپ کو زندگی والی اولاد بخشے اور آپ کو بیٹے نہیں بلکہ نبی دے گا، آپ کو بیٹیاں نہیں نبیہ دے گا، جس سے آپ فخر کے ساتھ کہہ سکیں گے کہ ہمارا فلاں بیٹا فلاں بیٹی نبیہ ہے، ہمارا بیٹا نبی ہے۔ خدا ایسے الفاظ آپ کے منہ سے نکالے گا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جس باطن سے، جس رحم سے خدا کی بیٹیاں اور بیٹے نکلتے ہیں اس کی ماں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ جہاں سے خدا نے اس کی ماں کے باطن میں سے خدا نے اپنے نبی کو یا نبیہ کو بھیجا ہے، اس کی ماں کے کرمچی گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اولاد پانے سے تو نجات پائے گی۔ تو وہ عورتیں نجات یافتہ ہیں جنہوں نے خدا پر توکل کیا اور خداوند سے بیٹیاں اور بیٹے لیے ہیں، وہ نہایت پاک اور مقدس عورتیں ہیں اور خدا بھی ان کی عزت کرتا ہے۔ ہالیلویا! تو ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے اور سب دعا کریں گے۔ خداوند اس کلام کے عوض آپ کو بڑھائے گا اور برکت عطا کرے گا کہ آپ اس پر عمل کر کر بہت سا پھل لے کے آئیں۔ وہ زندہ خدا ہے، وہی وعدوں کا سچا خداوند ہے، وہی دور نزدیک کا خداوند ہے۔ آج اس کی بڑھائی کریں، جسے خداوند نے اس کے مانگنے پر بیٹے دیے ہیں، بیٹیاں دی ہیں، خدا ان کی شکر گزاری وہ بہنیں کریں کہ خداوند نے ان کے مانگنے پر ان کی عاجزی کو دیکھا اور ان کی رسوائیوں کو دور کیا ہے۔ وہی وعدوں کا سچا خداوند ہے، جن کا ایمان بھروسہ توکل خدا پر ہے، وہ دعا کریں خداوند ان کے بچوں کو بڑھائے، انہیں برکت بخشے، وہ زمین پر زورآور بن جائیں۔ اپنے بچوں کے لیے دعا کیجیے گا، وہ وعدوں کا سچا خداوند ہے، اور جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے وہ بھی دعا کریں کہ خداوند مجھے اس سال میں برکت دے،
मैंने तुझसे दिल लगाया है, ऐ खुदा मेरी खाली झोली को भर दे, ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे मुनज्जिम, आज से अभी से मेरे बंधन तोड़ दे। तू वादा का सच्चा है, तू ही दूरदर्शी का खुदा है। अजीजों, सब दुआ करें, कोई सुबह हमें खामोश करे, सब बहनें दुआ करें, सब बहनें दुआ करें, कोई जुबान हमें खामोश करे। हालेलुया रसबाबा मददोर रो 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 शबाबा इनला तरो शकमहा तमसा हसी। वादों के सच्चे खुदा तेरा शुक्र है। ऐ खुदा, तू जिस भी तेरा कलाम रूप में आता है बंधनों को तोड़ जाता है। ऐ खुदा हमें नहीं पता कि तू किस किस से बात करना चाहता है। ऐ खुदा, तूने आज अपने लोगों से बात की। ऐ वादों के सच्चे हम तेरा शुक्र अता करते हैं। ऐ दूर नसीब के रब तेरा शुक्र अता करते हैं। ऐ नहायत अजीम खुदावंद तेरा शुक्र अता करते हैं। ऐ बादशाह मुनज्जिम तेरा शुक्र अता करते हैं। ऐ वादों के सच्चे खुदा तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। ऐ खुदा अपने बच्चों के मांगने पर, उनकी दस्तहारी पर, ऐ खुदा उन्हें बेटे नहीं नबी बख्श देता है। इन्नमोत बाज बहा सबहा मददोर कला सकरर मसमस मददोर बहा सबहो सबहो सबहो। हालेलुया रसकम समसी। अजीजों, दिल खोल कर दुआ करें, दिल खोल कर दुआ करें। जिसको खुदावंद ने बेटे या बेटियां दी है उसकी शुक्र गुजारी करें। अपने बच्चों के लिए दुआ करें, उनकी बहाली को चाहें। ऐ खुदा, मेरे बच्चों को उनकी दराजी अता कर दे। ऐ खुदा ने पीरी अता कर दे। ऐ खुदा वो तेरे सूर मासूमिया बन जाए बादशाह। ऐ वादों के सच्चे खुदा, जो बेटे और बेटियां तूने मुझे दी है, ऐ खुदा वो तेरे हैं। ऐ खुदा ने अपने लहू में नाइट कर ले। ऐ खुदा ने अपने लहू में छुपा ले। ऐ खुदा शरीर के फरिश्तों से बचा के महफूज रखेगा। ऐ वादों के सच्चे खुदा, तूने अपनी बेटियों की रसवाई दूर की है। ऐ खुदा ने इनकी औलादों को, अपनी बेटियों की औलादों को खुदा जोरों बर कर दे। ऐ बादशाह खुदा ने तू वादों का सच्चा खुदावन है। तू ही दूरत नसीब का खुदा, हमारा बाप है, हमारा रब है। जो लोग आज इसे रोशनी के दौर में, जो बहनें भाई जादू तवीज़ों की तरफ भागे हैं कि हमें औलाद जैसी नेमत मिल जाए, हमें औलाद जैसी बरकत मिल जाए, वो खुदावंद से माफी को तलब करें, क्योंकि ये मिरास खुदा की तरफ से है और रास्तबाज के लिए बहुत बड़ा अजर है। ओ बेशक खुदा जो सब लोग से माफी का तलब करे। वो यहाँ पे मौजूद है, वो यहाँ पे मौजूद है। अपनी खताओं में, अपने गुनाहों की माफी तलब करे। तौबा करने माफ खुदावंद नहीं सैन जो बाबे सजावल। अजीजों, खुदावंद से माफी को तलब करें। अगर आपके बाल चाक, आपके माँ बाप में जादू तवीज़ था, चिराग बत्तियां बगा के मर गए हैं और उनकी सजाएं आप और आपके बच्चे उठा रहे हैं, तो आज खुदावंद से माफी को तलब करें। आज खुदावंद से माफी मांगे। ऐ खुदा, हमें माफ कर दे। ऐ मेरे बादशाह खुदा, हमारे गुनाह, हमारी खताएं, हमें माफ फरमा दे। ऐ खुदा, हम नहायत गुनाहगार हैं, हमारे पाप हैं, बड़े गुनाह किए खुदा, लेकिन तू माफ करने की कादिर है। तू ही मेरा खुदा है, तू ही मेरा रब है। खुदा तू माफ फरमा दे। सब कहेंगे
कर दे माफ। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा ले, क्रिया सार पूछे खुदावन के आगे, खुदावन से माफी को तलब कर, खुदा हमें माफ कर, ऐ खुदा हमारी खुदाएं बख्श, ऐ खुदा तू तो दिलो गुर्दों को चांचने वाला खुदा है। ऐ देख खुदा मैं तेरे हुजूर में आई हूँ, आया हूँ, मुझे आज रहम कर मुझ पर, मुझे माफ फरमा खुदावंद, क्योंकि तू माफ करने में कुदरत रखता है। तू ही मेरा बादशाह, तू ही मेरा बाप है, मुझ पे रहम कर दे खुदा। हंसदी ओठों दुख बीमारी, हंसदी तेरी रहमत जिसे करे, हंसदी ओठों दुख बीमारी, हंसदी ओठों दुख बीमारी, हंसदी बहुत बहुत मैं ठेके खाने ने कहे खुदावन से, बताए खुदावन को, मैं गायब बाबू के पास गया हूँ, मैंने बहुत ठेके खाए हैं, मुझ पे रहम कर दे, मुझे माफ कर दे खुदा, माफ करेगा तो मैं माफ हो जाऊंगा, ऐ खुदा मुझ पे रहम कर।
से जगा में सजानो नई से जगा में सजानो नई से जगा में सजानो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेशक अज़ीज़ो खुदा यहाँ पे मौजूद है। वो वादों का सच्चा खुदावंद है। और जब हम खाकसारी की हालत में हो जाते हैं, खुदावंद से दुआ करते हैं, उससे माफ़ी को तलब करते हैं, तो वो हमें माफ़ करने में कादिर मुतलक है। वही है जो आज बंद रहमों को खोल देगा। वही है जो आज हर तरह की बंदिशों को तोड़ देगा, क्योंकि वो खुदाए कादिर मुतलक यहूदा का शेर बब्बर है, वो इस जगह पे मौजूद है। अजीजो दुआ करे, आज खुदावन आपको बरकत पर बरकत बख्शेगा। वो नहायत अजीम खुदावन है, उस पर तवक्कल रखे, उस पर ईमान रखे कि खुदा ने आज से बल्कि अभी से मेरी रसवाई को दूर कर दिया है, मेरे दुख को देख लिया है, मेरी मुसीबतों को देख लिया है। खुदा आज से मुझे मेरे दुखों से, मेरी रसवाई से मेरे खुदावंद ने मुझे छुड़ा लिया है। मेरा खुदा मुझ पर नजर कर रहा है। खुदा यहाँ पे मौजूद है। अज़ीज़ो खुदावंद आपको छुड़ा है। आज बंद रहम खुल जाए, यीशु मसीह के नाम से बंद रहम खुले। खुदावंद पर तवक्कल करें, दिल से रूह से खुदा से माफी को तलब करें, खुदा से माफी को तलब करें। वही वादों का सच्चा खुदा है, वही दुर नसीब का खुदावंद है। इत्तबा ज़मा एलिया के खुदा बेशक अलीशा के खुदा ऐसा करने में कुदरत वाला खुदा है। खुदा ऐसा करने में बड़ी कुदरत है। एलिया के खुदा एलिया के खुदा, अलीशा के खुदा, अलीशा के खुदा अपनी मंडली में आ, अपनी मंडली में आके आग बरसा, दिल से रूह से पुकारे, अपनी मंडली में आके आग बरसा। एलिया के खुदा, एलिया के खुदा अलीशा के खुदा, रुआ नशीब एलिया है। के खुदा अलीशा के खुदा एलिया के खुदा अलीशा के खुदा एलिया के खुदा अलीशा के खुदा अपनी मंडली में आके आग बरसा, आके आग बरसा। अलीशा के खुदा एलिया के खुदा अलीशा के खुदा एलिया के खुदा अलीशा के खुदा एलिया के खुदा अलीशा के खुदा। हालेलुया। अज़ीज़ों, जो पहले ज़मीन पर बैठी हैं, क्या वो बूढ़ी हो गई, उनकी प्रार्थना में जोर नहीं है? खुदा आज आपको जोर अदा करने के लिए आया है। खुदा आज आपके बंधनों को तोड़ने के लिए आया है। अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। खुदा यहाँ पे मौजूद है, वो तख्त पर है, उसके हुजूर खड़े होकर उसकी इबादत करें। वो वादों का सच्चा खुदावंद है। अगर आप हारे हुए लोग हैं तो बैठे रहें। अगर आज आपने खुदा से बढ़कर गलबा लेना है तो अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। पेंतिकोस के दिन की बात में आपकी जीपें बरसा दे। सब कहें, पेंतिकोस के पेंतिकोस के दिन की मानिंद आपकी जीपें बरसा दे। पेंतिकोस के
शक्ल से जो खुदा यहाँ पे मौजूद है, सब दुआ करें, ये लम्हात बड़े कीमती हैं। खुदा आपको छू रहा है, खुदा आपके बंधनों को तोड़ रहा है। आसमान से आग बरस रही है, आसमान से आग आ रही है। आज आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज यहूदा के शेरे बब्बर ने आपके लिए दरख्वास्त की है। वो जो किबरिया की दानी तरफ बैठा है, आज आप पर उसका दाहिना हाथ आ चुका है। अजीजों, सब दुआ करें। जो घुटनों के बाल होना चाहते हैं वो घुटनों के बाल होके दुआ करें। जो घुटनों के बाल हो सकते हैं वो घुटनों के बाल होके दुआ करें। खुदा की बरकतों को चाहे, खुदा उनसे कहे, खुदा आज मुझ पर रहम कर। आज खुदा मुझ पर दर्श कर। तू ही वादों का सच्चा है, तू ही दूरदर्शी का खुदा है, तू मेरा बाप है, तू ही मेरा मुनज्जी है। ऐ मेरे बादशाह रब, आज मुझ पे रहम कर दे खुदा। आज मुझे जिंदगी वाली औलाद बख्श दे। ऐ खुदा देख, मैं ताने सुन के थक गई हूँ, थक गया हूँ मेरे बाप आसमानी, मुझ पे रहम कर मेरे बाप खुदा। तू वादों का सच्चा है, तू दूरदर्शी का खुदावन है। ऐ खुदा मेरी पस्त हाली की तरफ अपनी मुकद्दस निगाह कर दे। ऐ मेरे बादशाह, आज से अभी से मेरे रुके हुए कामों को बहाल कर। ऐ मेरे खुदावन, मेरे कामों को बहाल कर दे, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा दे। ऐ खुदा तू यहाँ पे मौजूद है। ऐ खुदावन, मेरे बंधनों को तोड़ दे। आज तेरा दाहिना हाथ खुदा मेरे सर पर आज है मेरे बादशाह। आज मेरे सर पर अपना हाथ रख दे। मेरे खुदा, मैं दुनिया में दुख उठाती हूँ, मैं दुनिया में दुख उठाता हूँ खुदा। ऐ खुदा, मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ। ऐ बादशाह रब, मुझ पर रहम कर, अपनी करम की निगाह कर दे। ऐ मेरे पाप खुदावंद, आज मुझ पर रहम वाला हाथ बढ़ा दे। तू ही दूरदर्शी का खुदावन है, तू ही मेरा बादशाह है, तू ही मेरा रब है। ऐ मेरे बादशाह रब, आज मुझ पे तरस कर मेरे खुदा, आज मुझ पे रहम कर दे खुदा। तू नहायत पाक और मुकद्दस है खुदा। मैं अपने दिल को तेरे हुजूर में खोलता हूँ मेरे बादशाह खुदा। मुझ पे रहम कर दे खुदा, मुझ पे तरस कर दे मेरे बाप आसमानी। ऐ खुदा, आज मेरे बंधन तोड़ दे, आज मेरे जुए चला दे खुदा। ऐ खुदा, मेरे आगे मेरे रास्तों को खोल दे। ऐ खुदा, निगर की दीवारों को तू ही गिरा सकता है। ऐ खुदा, मेरे रास्तों से निगर की दीवारों को गिरा। ऐ खुदा, मेरे घर में बहाली को ले जा, मेरे घर से बेरोजगारों को जला दे, आज की रातों को जला दे खुदा। कांग्रेसियों को जला दे, लड़ाई झगड़े की विद्रोहों को जला दे खुदा। तू वादों का सच्चा है खुदा, तू ही दूरदर्शी का खुदा है। आज मुझ पे रहम कर खुदा, आज मुझ पे तरस कर दे खुदा। तुझे दूरदर्शी का खुदा है बाप खुदा। ऐ रब्बुल आज मैं दुख उठाती हूँ, मैं दुख उठाता हूँ खुदा, लेकिन खातिर जमा रखता हूँ, मैं खातिर जमा रखती हूँ खुदा। तू मेरा बादशाह, तू ही मेरा बाप है खुदा, जो मुझे तमाम दुखों से, मुझे तमाम मुसीबतों से रिहाई बख्शेगा। ऐ खुदा, तू कादिर मुतलक है, तू यहूदा का शेरे बब्बर है। ऐ मेरे बादशाह रब, मुझ पे रहम कर। ऐ बादशाह रब, मुझ पे तरस कर दे। ऐ खुदा, मेरी बस हाली पे निकाह कर खुदा। आज के बाद मैं पहले जैसा ना रहूं, आज के बाद मैं पहले जैसी ना रहूं। ऐ खुदा, हर तरह की नाफरमानी की सपिटों को मेरी जिंदगी से दूर कर दे। हर तरह की खुदगर्जी की बुदरूहें निकले मेरी जिंदगी से खुदा। ऐ खुदा, मेरे दिल को गोश्त दिल आज कर खुदा। तू वादों का सच्चा खुदा, तू ही मेरा बादशाह, तू ही मेरी बस हालियों में मेरे साथ है। ऐ खुदा, तू मेरा सहारा है, तू ही मेरा आसरा है। जब मैं गिरता हूँ, मैं गिरती हूँ, मैं तुझे पुकारती हूँ। ऐ खुदा, तू अपना शफकत वाला हाथ बढ़ा देता है और मुझ गिरी हुए को उठा लेता है, मुझ गिरे हुए को उठा लेता है। तू ही मेरा बादशाह, तू ही मेरा रब है। ऐ खुदा,
बार शमा और सकमा समसमसिया मददोर बशियारा तो वतवतो और बस बसो बहा सबहा और Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. 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 तेरे छूने के लिए, तेरे बरकत बख्शने के लिए, ऐ खुदा तूने आज अपने बच्चों को आसान किया है, तूने आज अपने बच्चों को रिहाई बख्शी है, ऐ खुदा तेरे हुजूर में तेरे बच्चे के लिए आसान हुए हैं, ऐ खुदा तूने आज अपने बच्चों के बंधनों को तोड़ दिया है, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। अजीजों, आप रूह में, जान में, बदन में कैसा महसूस कर रहे हैं? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. इतनी जबरदस्त अनाइंटिंग कि खुदा खुद यहाँ पे मौजूद था और मैं रूम में फील कर रही थी कि खुदा यीशु मसीह ने इनके के सर पर अपना हाथ रखा है, इस वजह से मैंने आपके हाथ आपके सरों पे नहीं रखवाए। खुदा यहाँ पे मौजूद था। किस किस ने उसे फील किया कि खुदा यहाँ पे मौजूद था? जोरदार तालियां डालिए इसके लिए, जोरदार तालियां। आप सब आपके